हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वेदांतु कॉमर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. आई होप यू आर वेयरिंग मास्क. Please take care of yourself. It's very, very important to be very careful. Students, welcome to today's class. Today we are going to discuss about determinants of demand. What are we going to discuss? We are going to discuss determinants of demand. This is a part from your chapter number 3A in your 12th standard of Maharashtra State Board. So before we move forward, come on students, quickly subscribe to the Vedantu Commerce channel, everybody, fatafat. And then we'll start with the chapter demand, जिसमें से एक छोटा पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, which is determinants of demand. तो सबसे पहले बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है कि डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है. डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है द फैक्टर्स, द सिचुएशंस दैट अफेक्ट डिमांड. The factors and the situations that affect demand is called as the determinants of demand, also called as factors affecting demand. ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं. Let us start. So students, when we talk about factors affecting demand, so when these factors will affect demand, demand will either increase or demand will decrease. जैसे in the previous class we had studied that when the price rises, demand will fall. When the price will fall, demand will rise. So that was one factor, price, which was affecting demand. Correct? Today we are going to discuss other factors also which will affect the demand for a commodity. तो चलिए शुरू करते हैं. The first determinant is price. बच्चों, प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को अफेक्ट करता है. जब भी हम कोई भी कमोडिटी परचेज करने जाते हैं, सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं उसका प्राइस. अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो हम कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे. अगर प्राइस कम हुआ तो हम ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे. सो हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड. Lower the price, higher the demand. So price and demand, they both move in the opposite direction. That is the reason we say that price and demand have inverse relationship. बोलो कौन सा relationship? Inverse relationship. So exam में question आएगा, price and demand have dash relationship. Your answer has to be inverse relationship. ठीक है? The next point is income of a consumer. Income means what? Whenever you sell goods or services, you receive money in return. This money that you receive is called as your income. So any amount of money that you receive is your income. तो बच्चों, अगर मेरा इनकम ज्यादा रहेगा तो नेचुरली मेरा ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा रहेगा. अगर मेरा इनकम कम रहेगा तो ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड भी कम रहेगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं ज्यादा रोटी खाऊंगी. बच्चों, फूड तो हम उतना ही खाते हैं जितना हमें चाहिए. बट कैन आई से माई डिमांड फॉर अदर कमोडिटीज लाइक से फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन और एक्सपेंसिव फोन, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ये बढ़ जाएगा. बट मेरा जो क्वांटिटी ऑफ फूड है दैट इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट. सो बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मैम इनकम बढ़ने से हम ज्यादा थोड़ी खाते हैं. But बच्चों, understand that it is not about food, it is about the overall goods that you demand, goods and services which will increase. ठीक है? Then आता है substitute goods. Substitute goods are those goods which satisfy your want. One commodity is needed to satisfy your want. So either it is tea or it is coffee, thumbs up or Pepsi, Mirinda or Fanta, 7up or Sprite. Correct everyone? So when we talk about substitute goods students, they are used in place of each other. ये नहीं तो वो सही. Correct? तो अगर आप कोई रेस्टोरेंट में गए, वहां पे अगर प्राइस ऑफ कॉफी कम है तो कैन आई से यू विल डिमांड मोर कॉफी. करेक्ट? अब ये एग्जाम्पल लेते हैं. When the price of tea was 10 rupees, demand for tea was 100 cups. When the price of coffee was 12 rupees, the demand for coffee was 70 cups.
अब क्या हो रहा है, हमारा फोकस है क्वांटिटी ऑफ टी पे, डिमांड फॉर टी पे हमारा फोकस है। अब देखो, अरे टी का प्राइस तो कांस्टेंट है, फिर भी टी का डिमांड कम हो गया। क्यों कम हो गया? बाजू में देखो, बिकॉज प्राइस ऑफ कॉफी हैज रिड्यूस्ड। Since the price of coffee has reduced, students, because of which now people will demand more of coffee and less of tea. तो यहाँ पे डिमांड ऑफ टी को चेंज करने वाला कौन, अफेक्ट करने वाला कौन, प्राइस ऑफ टी के प्राइस ऑफ कॉफी? यस, प्राइस ऑफ कॉफी। तो यहाँ पे भी से द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड। सिमिलरली जब भी प्राइस ऑफ थम्स अप, प्राइस ऑफ पेप्सी में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे वाले का अफेक्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल्स, डिमांड फॉर द कमोडिटी विल फॉल। कौन सा कमोडिटी? उसका सब्स्टिट्यूट विल फॉल। सो दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। The relationship between demand and price of substitute goods is direct in nature. So higher the price of coffee, higher will be the demand for tea. Lower the price of coffee, lower will be the demand for tea. ठीक है, देन आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बच्चों ऐसे गुड्स है जो साथ में लगेंगे। अब मेरा वांट है ड्राइव करना। अभी ड्राइव करने के लिए बच्चों कैन आई से आई विल रिक्वायर पेट्रोल और एनी टाइप ऑफ फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एनीथिंग। सो जब मैं छोटी थी तो मैं अपने डैड को बोलती थी कि डैड चलो ना एक गाड़ी खरीदते हैं यार। तो डैडी मेरे को बोलते हैं कि बेटा मैं गाड़ी तो खरीद लूंगा, लेकिन उसमें पेट्रोल कौन, तेरा बाप भरवाएगा। तो मन में तो आता था हाँ मेरे डैडी भरवाएंगे ना, और कौन भरवाएगा। जोक्स अपार्ट, so my dad's buying decision of car is not dependent on price of car. डैडी बोलते गाड़ी तो ले लेंगे यार, बट पेट्रोल का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से डैडी क्या बोलते हैं कि नहीं भाई कार नहीं खरीदना है। So when the price of fuel, any type of fuel, it can be petrol, diesel or CNG, rises, demand for the car will fall. Higher the price of a complementary good, lower the demand for the commodity. बराबर छे। So they both move in opposite direction. तो जैसे ही पेट्रोल का प्राइस कम होगा, जो कि कभी होने वाला नहीं है, तो when the price of petrol will fall, the demand for car will rise. So they move in opposite directions, inverse relationship. अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप क्या था? डायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स। याद रखना, भूलना नहीं। Another example for complementary goods can be butter and bread, trouser and shirt, shoes and socks. All these are complementary goods जो साथ में चाहिए। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ कुछ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स फटाफट जवाब दे देना। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज व्हाट? डायरेक्टली, इनवर्सली, प्रोपोर्शनेटली कि ऑल ऑफ द अबव? सिंपल, इजी पीजी। Yes, the answer is inversely. Price and quantity demand inversely. Next question. When goods like car and fuel are simultaneously demanded, together demanded, then it is called as which type of goods? Complementary goods, or rather complementary demand, alternate demand, substitute demand. Easy है, कार एंड पेट्रोल साथ में यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आंसर इज ए। चलो अब बच्चों, नाउ जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट में आपका जवाब हाँ आया, अगर डाउट्स है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का रिक्वायरमेंट है, और क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट सॉल्व करना है, सिलेबस बाकी है, रिवीजन प्लान चाहिए, तो बच्चों ज्वाइन कीजिए हमारा वेदांतु लाइव एंड इंटरैक्टिव कोर्स, where there are going to be many online classes with high level of quizzes which will cover an entire syllabus. Yes, and all these things was available for 9500. Now bachcho, this is available only for 8550, but for that you will have to use a coupon code.
The coupon code is MTPRO. Use the code and you will get all these things for 8550. Yes बच्चों, चलो अब बात करते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन की. इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो ओवरऑल डिमांड फॉर द पीपल विल ऑल्सो बी मोर नेचुरली. ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन कम है तो नेचुरली ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल डिमांड विल ऑल्सो बी लेस. उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन. तो कहना इसे जो कंट्री में बच्चे ज्यादा है वहां पे डाइपर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे. जहां पे वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे लैपटॉप ज्यादा लगेंगे. जहां पे ओल्ड पीपल ज्यादा है वहां पे मेडिसिन या एंड डेंचर्स लगेंगे. डेंचर्स मतलब वो जो हम पहनते हैं ना दांत में, वो ज्यादा लगेंगे. सो नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड तो करता ही है, बट कैनाई से साथ में कैसे तरीके कौन से एज के लोग रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. अगर कोई कंट्री में ज्यादा फीमेल्स है तो डिमांड फॉर फीमेल प्रोडक्ट्स विल बी मोर. अगर ज्यादा मेल्स है तो डिमांड फॉर मेल प्रोडक्ट्स विल बी मोर. करेक्ट. देन आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस. तो बच्चों यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस ओनली, बट प्रेजेंट प्राइस के फ्यूचर प्राइस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर प्राइस. नाउ मेरी मम्मी का ना हैबिट है कि गेहूं और चावल पूरे साल का भर के रखती है. तो हर ईयर दिसंबर जनवरी के आसपास माय मॉम विल कॉल द किराने वाला अंकल, उनका नाम राजू भाई है. राजू भाई को कॉल करेगी मम्मी और पूछेगी राजू भाई चोखा नो शू भाव छे, विच मीन्स व्हाट इज द प्राइस ऑफ द राइस. तो राजू भाई बोलेंगे भाभी आज चोखा છે ને 50 રૂપિયામાં મળે છે 1 કિલો, which means what કે the rice is available for 50 rupees per kg. તો ઇન્સ્ટન્ટલી ના मेरी મમ્મી એક નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછતી है, તમને શું લાગે છે कि काले भाव વધશે કે ઘટશે, which means आपको क्या लगता है राइस का प्राइस बढ़ेगा कि कम होएगा. नाउ दीज शॉपकीपर्स नो एवरीथिंग, उनको सब पता होता है. तो राजू भाई बोलते हैं भाभी मने लागे छे कि प्राइस छे ने વધશે, which means भाभी मुझे लगता है प्राइस बढ़ने वाला है. तो मम्मी क्या करेगी 50 रुपीज में आज खरीद लेगी कि भाई आज भेज दो 10 किलो चावल. कल प्राइस 60 हो जाएगा तो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, छोड़ो आज ही भेज दो. मतलब when the future prices are expected to increase, can I say my present demand will also be more at a lower price. कि चल यार फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाला है तो मैं आज खरीद लेती हूँ. अगर राजू भाई बोलते कि प्राइस कम होने वाला है तो मम्मी क्या बोलती, छोड़ना आज नहीं लेती हूँ कल लूंगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एवरी कस्टमर हैज एन एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस. If he expects the price to rise, demand will rise, present demand. If he expects the future price to fall, then your present demand will also fall. ठीक है. Then advertisement. जब मैं बच्ची थी ना तो जब भी मैं टेलीविजन पे ऐड देखती थी आई यूज्ड टू फील मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए. मतलब द डे आई विल, तो अभी ना बीच में वो आया था लिटिल हार्ट्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ओ गॉड आई वांटेड इट. तो मैंने जैसे ही ऐड देखा मैंने ना जाके शॉप से पूछा अरे है क्या, अरे है क्या. इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट. तो जैसे ही मुझे ना, एंड आई डिड नॉट गेट इट फॉर 10 days, 10 दिन तक मैं ढूंढ रही हूँ मिला ही नहीं. एक शॉप में मुझे दिखा, यार ले लेती हूँ, बाद में नहीं मिलेगा तो एक साथ मैंने 10 पैकेट खरीद लिए. बोलो वाई? एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट था भाई. सो एडवर्टीजमेंट हम रोज देखते हैं, रोज इन्फ्लुएंस होते हैं, and these advertisements affect our demand pattern also. तो अगर एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट हमारे पे है तो डिमांड विल बी मोर, अगर इफेक्ट कम है तो डिमांड विल बी लेस. So can I say the advertisers, the companies try to create such advertisement which will have an impact on the people, because अगर impact ज़्यादा रहेगा तो demand ज़्यादा, impact अगर कम रहेगा तो demand will be less. बराबर छे. Next is taste, habit and fashion. So people have different taste. Vegetarian will not have taste for meat, but a person who eats meat will love meat. They will demand more of a commodity, and vegetarians like me will not demand meat, so demand will be less. Then आता है habits. My mom is habituated to tea.
हैबिचुअल मतलब इतना हैबिचुअल कि पूछो ही मत. सो फॉर हर द डिमांड फॉर टी इज मोर. I am not habituated to anything, so my demand for tea will not be more. So if you are habituated to for a commodity, your demand for that commodity will be more. When something is in fashion, demand will be more. अब बेल बॉटम जीन्स तो आउट ऑफ फैशन हो गया, अभी कौन पहनता है यार. सो डिमांड फॉर बेल बॉटम जीन्स विच इज आउटडेटेड विल बी लेस, and demand for skinny jeans will be more. So fashion also determines your buying habits. Then आता है टैक्सेशन. अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स करेगा, करेक्ट, तो मेरा प्राइस बढ़ जाएगा कमोडिटी का. अगर इन गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया तो प्राइस बढ़ जाएगा. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम. गवर्नमेंट ने अगर जीएसटी कम कर दिया तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल फॉल. प्राइस विल फॉल, डिमांड ज्यादा. सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, अगर इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो मेरे पास जो इनकम बचेगा वो कम, देयरफॉर डिमांड कम. अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिया तो मेरा डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा, मतलब मेरा डिमांड ज्यादा. इन एनी सिनेरियो जब भी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाता है लोगों का डिमांड कम होता है. जब भी गवर्नमेंट टैक्सेस कम करता है तो लोगों का डिमांड बढ़ता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो कि वो इनडायरेक्ट टैक्स हो. ठीक है. सो हायर द टैक्सेशन लोअर द डिमांड, lower the taxation higher the demand, simple. Then there are other things which will affect demand, such as climatic conditions, जैसे sweaters we will demand during winters. Technology, government policy will decide your demand. Customs tradition, जैसे कि we are Hindus, तो हिंदू में शादी के टाइम में मंगलसूत्र पहनाते हैं. तो जब मेरा शादी था तब मैंने मंगलसूत्र डिमांड किया, yes or no. जब किसी क्रिश्चियन का वेडिंग होगा तो they will demand a white dress, correct. So depending on traditions, customs, also demand for the people will change. ठीक है. चलो फटाफट क्विज सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which of the following is not an example of substitute goods? कौन सा substitute good नहीं है? टी कॉफी, कोक पेप्सी, इंक पेन, बॉल पेन के ब्रेड एंड बटर. Very simple everyone, come on. Yes, the answer is bread and butter because they are complementary goods. Yuppie! That's all for the day. Done, done. Thank you very much, everybody. What did we study? We studied the determinants of demand, which were price of commodity, income of the consumer, price of substitute goods, price of complementary goods, size of population, nature of commodity, expectations, advertisement, taste, habit, fashion, level of taxation, and other factors. I hope you all have understood, students. Thank you very much for attending. After this, if you have any doubts, if you want conceptual clarity, if you want to solve more assignments, join us at Vedantu Live, where there are going to be a lot of quizzes, a lot of live courses, and your entire syllabus will be covered. You will be given many assignments to solve, and all your doubts will also be cleared instantly. Correct? All the topic-wise assignments are also given. So take the mock test and improve your percentage, students. There are many micro courses also available free of cost. So bachcho, use this opportunity and register yourself. All this you are getting only for 9500. But since you have been till the end of the class, I am giving you a discount coupon code which is MTPRO. And with this you will get this for 8550. Students, it's a steal. Go and register yourself, and you can get a chance to be on our wall of fame just like these lovely students. Thank you very much, everybody. In the next class, we will be discussing about variation and change in demand. I will see you all in the next class, but before that, like, share and subscribe to the Vedantu channel. Thank you very much, everybody. See you in the next class. Bye-bye.